We'll start starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Dr. Bilal and I'm an assistant professor in forensic medicine department. Today we are going to discuss a very important topic, that is organophosphorus and datura poisoning. So these are two separate topics. We'll be discussing that separately in different portions. Again, first is the organophosphorus poisoning and the second one is the datura poisoning. So for that, our learning objective for the today will be, at the end of the lecture, the student will be able to focus on mechanism of action of organophosphorus poisoning, organophosphorus compounds. जो organophosphorus compounds है हमारे पास, उनके mechanism of action क्या होते हैं, sign and symptoms, fatal dose and fatal period, as such जिस तरह हम special toxicology में पढ़ते हैं. Along with that, we will be discussing the treatment, postmortem appearance, medical legal aspect of organophosphorus poisoning. After complete all of this jump of organophosphorus poisoning, we will be moving forward to the Datura poisoning. So there we will be discussing what is the Datura plant and how different varieties and kinds of there are in the Datura plant. After that, same like that in the special toxicology, as we discussed in the organophosphorus poisoning, we will be discussing that here in Datura as well, the fatal dose and fatal period. So for that, the sign and symptoms and treatment of the Datura poisoning. Eventually, we will be discussing the postmortem appearance and the medical legal aspect of Datura poisoning. So, Dr. Saab, we are starting with the organophosphorus compounds. What is the organophosphorus compounds? These are the compounds which are used as an pesticides, vermicides, and rodenticides in agriculture. Like they can be used to kill the pests, they can be used to kill the worms, and they can be used to kill the dogs or rodents that destroying the agriculture. So, what does it mean? It is easily available. Organophosphorus compounds में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आती हैं, पैराक्विट, डीडीटी, कार्बामाइड्स, एंड्रिन, मैलाथिओन, पैराथिओन एंड डायज़ाइओन. ये हमारे पास तमाम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स में आते हैं. एंड डू रिमेंबर these are frequently used in the farms by the farmers, so they are most of the time exposed to such type of the poisonings and toxicity. So this is normally used in Pakistan and in our neighboring country India and Sri Lanka, these poisons, as well as in Pakistan. Sahi, Dr. Saab? So these poisons are easily available near to our streets. So we can, there are many chances that we came across such type of patients in our ER. So starting with the poisons, how the organophosphorus poisons affect. So it might be ingested, खा भी सकते हो, inhaled, सांस भी ले सकते हो, and absorption through the unbroken skin. जो आपकी skin है उससे ये observe भी हो सकती है. See, this is somehow very powerful. क्या करते हैं ये? is a powerful inhibitor of cholesterase. डॉक्टर साहब, we discuss in the first year and second year MBBS के cholesterase क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक specific एंजाइम होती है. अगर इसे हम कहें, दिस इज अ कैटालेज, स्पेसिफिक कैटालेज दैट इज प्रेजेंट, दैट्स यूज्ड टू ब्रेक डाउन द एसिटाइलकोलिन व्हाइल द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारे पास कोलिनेस्ट्रेज मौजूद नहीं है तो हमारे पास क्या चीज होगी? द ड्रॉबैक वुड बी there will be excessive hyper excitations of voluntary and involuntary muscles. तो जितने हमारे पास voluntary और involuntary muscles हैं उसकी hyper excitations हो जाती हैं, because there is no cholesterase present to stop the neuromuscular junction. So this is very important regarding the poisons. How it did affect? It increase the cholesterase inhibition. सही है. जो हमारे पास cholesterase एक specific कैटलिस्ट है जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करेगा during the neuromuscular junction, so that's not present at the moment because organophosphorus compound inhibit that, so that leading to the hyperextension and of the voluntary and involuntary muscles. Effect of the organophosphorus compound on the human body would be that, Dr. when the rate of the acetylcholinesterase drop to the 30% or more than that, then all of the effects will be there. मतलब अगर 100% है तो उसमें 80% उसको अफेक्ट किया, नो लाइक दिस. फिर उसके 70, 60, 50, इवेंचुअली जब हमारे पास कोलेस्ट्रेस की तादाद इतनी कम हो गई कि 30% रह गई या नॉर्मल के या उससे भी लोअर हो गई, 25, 20, so after that it will start to affect. It mean like we need to consume it a lot inside our body. उसके बाद ये अपने effects को show करेंगे. So the main toxic effects are
ये हमारे पास बड़ा म्यूकरेनिक स्टाइल इफेक्ट भी रखता है, निकोटिनिक स्टाइल इफेक्ट भी रखता है। स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास डीमाइलिनेशंस करते हैं, जिससे हमारे पास परमानेंट डैमेजेस होते हैं। वी डिस्कस इन द फिजियोलॉजी कि हमारे पास जो न्यूरॉन है दैट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, उनमें से माइलिन शीथ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज को कॉज करता है। ओके, जो हमारे पास जो फर्स्ट इलनेस आती है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है। जो हमारे पास जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स है, जो चाहे वो जीआईटी में है, चाहे वो हमारे पास कार्डियक है, उनको ये फर्स्ट अफेक्ट करेगा और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ग्लैंड्स को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज कर देगा और इवेंचुअली दैट विल लीड टू दी वाइटल ब्रेन सेंटर्स। सो हमने ये चीज़ खामखा याद करनी है कि जो हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स है ये फर्स्ट इफेक्ट होंगे, इसके बाद हमारे पास जो है ना ऐसा लगेगा जैसे ब्रोंकियल एस्थमा अटैक है, tightness of chest, wheezing, discomfort, pain in the chest, ये तमाम इफेक्ट्स हमारे पास बिल्कुल म्यूकरेनिक इफेक्ट्स रखते हैं। सही है, तो एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रही है हमारे पास इतनी ज़्यादा कि उस टाइम पेशेंट के मुंह में जाग आ जाएगी। सही है, there's a lot of froth inside the mouth and nostril। और अगर बॉडी को हम देखें तो there will be completely cyanosed and there will be pinpoint pupil। That's very important part of something, that pupil will be extremely pinpoint, that you can see that the person is not even having any pupil। Okay, so this is very important। uh, let's move forward। what will be the GI symptoms? The GI symptom will be, क्या होगा कि अगर एक्सेसिव एक्साइटेशंस होगी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज की, तो एक्सेसिव नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया एंड इनवॉलेंट्री डिफिकेशन। अलोंग विद दैट जितने भी हमारे पास सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव सिक्रीट्स होंगे, देयर विल बी एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ द सेक्रेटरी ग्लैंड्स। So that's why the person will be having highly perspirations। अच्छा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब। क्रो क्रोमोल्यूकोरिया इज अ excessive lacrimations, but these lacrimations are in the red color। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पेशेंट खून के आंसू रो रहा होता है, लिटरली द ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम द eyes। What is the cause for that? The cause for that is excessive accumulation of the porphyrin in the lacrimal glands। So how the porphyrin came? Porphyrin came by the metabolism of the organophosphorus compounds। तो ये हमारे पास जब lacrimal gland में बहुत excessive amount में आ जाती है तो इससे हमारे पास ऐसे tears आते हैं जैसा bloody tears। So we call that chromogenic tears or we call that chromoleculoria। Okay, Dr. Saad, these are some important terms most of the time can be asked in the viva। तो इसके अलावा जैसे हमारे हमने कहा कि कोलेस्ट्रेस हमारे पास नहीं है, तो व्हाट बी द इफेक्ट ऑन द मैच्योरेशन? देयर विल बी फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलेंटरी, along with that salivation, lacrimation, defecation and urination, all of that will be in आप ऐसे कहें कि इनवॉलेंटरी, कंप्लीटली इसके कंट्रोल में नहीं होंगे। इफ यू टॉक अबाउट द सेवियर पॉइजनिंग, इट माइट रिप्रेजेंट विद पल्मोनरी एडिमा, कोमा, कन्वल्जन एंड इवेंचुअली डेथ कैन occur। So how the death can occur? It can occur by the paralysis of the all musculatures। जितने हमारे पास स्किन में रेस्पिरेटरी मसल्स होंगे, हमारे पास बॉडी में रेस्पिरेटरी मसल्स होंगे, वो एक्सेसिव अमाउंट में यूज होने की वजह से ड्यू टू नॉट प्रेजेंट ऑफ द कोलोनिक स्ट्रेस फैटीग में चल जाएंगे। दैट कैन इवेंचुअली लीड टू द पैरालिसिस ऑफ द ऑल मस्कुलेचर पैटर्न प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी फेलोर। So it eventually lead for the cardiac arrest and edema of the lung of the brain। सही डॉक्टर साहब? Let's move forward about the fatal dose। We talked about that we need the 50 milligram to 1 gram, but it eventually depend upon the route। What is the route? It's that either IV, inhalational, it's directly on the skin। Along with that, what is the age of the person and physique of the person? Some persons are, of course, ill. Their effect will be quite dramatic, and some people are very healthy. So on them, the poison effect very delayed। So let's go for the fatal period, that is from half an hour to 3 hours। So Dr. Saab, there's a very prominent picture has been shown in the scenario। Like एक किसान है जो कि that go to the farms where he is giving all the pesticides, and after that all of these signs symptoms has been appeared when he came back home। सही है? So 3 घंटे तक जब वो अपने काम को मुका के घर आता है तो उसमें ये सारे इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। So most of the time people miss the uh, uh, proper history, that the person has been already gone through the organophosphorus things। So if you are not
good physician, you're not able to judge the signs and symptoms and able to find out the diagnosis. One should go for the history. क्या आया वो आधे घंटे पहले या 3 घंटे पहले उसने क्या किया? So he go to farm and may have given some pesticides. So here the fatal period is very important. In non-fatal cases, it might go for the 6 hours to the 30 hours. Eventually 48 to 72 hours के बाद ये सबसाइड होना शुरू हो जाता है और एज सच 3 वीक्स तक भी एक्सेसिवली हमारे पास एक्सटेंड हो चुका है. सो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इज इन हाफ आवर टू 3 आवर ये हमारे पास अपना रिस्पॉन्स शो करता है. द फेटल डोज इज द 50 milligram to 1 gram depending upon the physique of the person and age of the person. So how we can treat anything that has inhibit the cholinesterase, that has created a lot of paralysis actions, that has created a lot of salivations, froth coming from the mouth, respiratory responses are going null. So what we're gonna do, if we find the person directly in such condition, we need to decontaminate that. Okay, the first one is the decontamination. अगर वो स्टिल उस खेतों में मौजूद है और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, सो फर्स्ट वी आर गोना डिकंटेमिनेट दैट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, फ्रॉम दैट रूम, ताकि अगर वो गैसेस फॉर्म में भी है तो उसे कंटिन्यूसली पॉइजनिंग ना होती रहे. एंड सेकेंडरली वी कैन रिमूव ऑल द क्लोथ्स, सही है, जो माइट बी ऑब्जर्व बाय द फाइबर्स दैट कैन इवेंचुअली लीड टू द पॉइजनिंग. So how we gonna take care of the airway? Of course we're gonna go for the respiratory suction. जितने हमारे पास sections है उसको हम clear करेंगे. If that is leading to the bronchial asthma या हमारे पास bronchial spasm हो चुका है due to its nicotinic and muscarinic effects, तो at that condition we will go for the tracheostomy. Directly emergency procedure है और इससे उसकी जान बच सकती है. So after that we will go for the administration of antidote, which antidote is very important for the organophosphorus poisoning. So Dr. Saab, atropine, that is atropine. Please do remember this. Atropine. All right, that is an atro. Okay. So atropine is very important. इसको रट लो, जहाँ पे भी organophosphorus poisoning आएगी वहाँ पे हम atropinization करेंगे. इवन फार्मा के एग्जाम्स में भी आप इसको go through करेंगे. So after that we will be discussing what should I administer so that there is no more such effect. सही, मैं अभी क्या चीज़ administer करूँ ताकि ये effect ख़त्म हो जाए. ये जो cholinesterase का जो हमारे पास effect है, ये मैं कैसे इसको ख़त्म करूँ. We discussed that it already inhibits the cholinesterase जो हमारे पास ये मौजूद है, इसने इसको inhibit किया है. So we need to reactivate them so that they destroyed the complexes of acetylcholine. इसकी वजह से जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो eventually lead to the breakdown और मसल रिलैक्स हो जाते हैं. सही है. सो इसके अलावा हमारे पास जितने भी जनरल एंड सपोर्टेड ट्रीटमेंट है हर एक पॉइजन में हम देते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वी कैन डिकंटिमिनेट, मैंने आपसे कहा है अगर कोई फिजिशियन या कोई सर्जन जो है एट द टाइम उसको ट्रीट कर रहा है, सो ही और शी मस्ट वेयर द ग्लव्स बिकॉज इज हाईली कंटिमिनेटेड और मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सोर्स. मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है. सेट इनसाइड द रूम वी मस्ट रिमूव दैट फ्रॉम दैट रूम एंड देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. अगर उसी जगह पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. सेकेंडली, if that's present inside the farms where their clothes are highly contaminated, so at that condition we need to remove the clothes as well. This is very important. सही, जो उसका dresses है, clothes है, उसको भी हम remove करेंगे. सही डॉक्टर साहब. So let's go forward. इसके अलावा उसके मतलब स्किन है उसको हम इस तरह भी डिकंटेमिनेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो पानी से, अगर पानी भी नहीं है तो मतलब सोप मौजूद है, पानी मौजूद है तो और भी अच्छी बात है. और अगर वो हॉस्पिटल के सेटअप में है सो वी विल गो फॉर दी अल्कलाइन सॉल्यूशंस सो दैट इट विल हाईली डिकंटेमिनेट दैट. और अगर उसने इसको इंजेस्ट किया है, खाया है, मतलब सांस नहीं ली है, उसने इसको इंजेस्ट किया है, सो व्हाट वी गोना डू, आवर फेवरेट गैस्ट्रिक लेवाज, स्टमक वॉश. सही है. किस चीज़ से करेंगे, टैप वाटर से या पोटाशियम परमंगनेट. बच्चों कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है. दिस इंपॉर्टेंट. पोटाशियम परमंगनेट हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर दी पॉइजनिंग ऑफ दी ऑर्गेनोफॉस्फोरस स्टमक वॉश. सही है.
How we gonna take care of the airway? सबसे पहले उसके पाँव को ऊपर करना है ताकि बेड साइड पे जहाँ पे भी है तो ड्रेनेज सेक्रेशन मुंह की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। अगर वो नहीं कर रहा तो डायरेक्टली गो फॉर दी कॉन्फिडेंटली गो फॉर दी सक्शन ट्यूब। सही है, तो जितने भी उसके एयरवे पैसेजेस है जहाँ पे मतलब नाक से या मुंह से जाग आ रही है तो कम्प्लीटली उसको क्लीन अप करना है। अगर ये सक्सेसफुल नहीं जा रहा है और सिचुएशन भी ड्रॉप कर रही है हमारे पास और साथ साथ हार्ट बीट भी तेज कर रही है, ब्लड प्रेशर भी हमारे पास हाई जा रहा है, सो इट्स डायरेक्टली गोइंग टू द शॉक। वी आर नॉट रिस्किंग दैट, वी आर गोइंग फॉर द ट्रैकियोस्टमी। देन वी आर गोइंग फॉर द आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। बस फुल सेचुरेशन में 15 लीटर 100% सेचुरेशन के साथ इसे सेचुरेट करना है। व्हाई इज दिस? बिकॉज वी आर पुशिंग द लंग्स टू रिमूव ऑल ऑफ द respired organophosporus poison। सही है। So what will be the antidote? I discussed that it's very important। इसको बिल्कुल आप खा जाओ। एट्रोपिन एट्रोपिन एट्रोपिन। सही है। इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर दी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये क्या करता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन का मिक्रेनिक इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। सही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये चीज खत्म हो जाती है। जितनी भी हमारे पास एक्सेसिव एक्सजरेशंस हो रही है इनसाइड दी आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स और इनसाइड दी salivary gland, so that would be going to the reverse। so ये बहुत ज़्यादा important है atropine for the organophosphorus poisoning। so dose would be 1 to 2 milligram either IM or IV after 15 to 30 minutes। इसके अलावा ये भी है कि अगर हम 12 मिलीग्राम तक इनिशियल 1-2 आवर में दे दें, फर्स्ट 2 आवर्स में अगर हम 12 मिलीग्राम तक भी एट्रोपिन दे दें तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स कंसिडर्ड सेफ। स्ट्रेस रिएक्टिवेटर्स में हमारे पास क्या चीज़ है? पेरिडोक्सामीन क्लोराइड एंड पेरिडोक्सामीन आयोडाइड। ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, जो उसके कोलेस्ट्रेस है इसको वापस रीएक्टिवेट करते हैं। सही है। सो दिस इज अनदर वन। ये हम अगर एट्रोपिन के साथ साथ में यूज करें एज एन सप्लीमेंट तो इफेक्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आ जाते हैं। समहाउ यहाँ तक भी अगर आपको पता हो कि एंटीडोट एट्रोपिन है तो बहुत बड़ी बात है। सही है। अदर मेजरमेंट्स में क्या आएंगे? डायरेटिक्स भी हम यूज कर सकते हैं, सलाइन परजेटिव्स भी हम यूज कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। अदर देन दिस वी विल गो फॉर द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर चकरा रहा है, उल्टी आ रही है, तो इसके लिए हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सही है। फर्स्ट 4 to 6 hours आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन द एक्यूट पॉइजनिंग। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा सीएनएस को इफेक्ट करता है। स्टार्ट में मैंने आपसे ये चीज़ कही है कि डीमाइलिनेशंस काज करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास परमानेंट डैमेज होती है। तो अगर वो होश में आता है, सब कुछ रिकवर हो जाती है, तो कभी कभार आंख टेढ़ी रह जाती है, कभी कभार मुंह टेढ़ा रह जाता है, बिकॉज दैट हैज कॉजेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डीमाइलिनेशन दैट हैज डैमेज टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो व्हाट बी द पोस्टमार्टम अपीयरेंस डॉक्टर साहब? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बंदा बिल्कुल साइनोस्ड होगा, ऑक्सीजन वगैरह आ नहीं रही थी, रेस्पिरेशन ट्रैक में तमाम जाग पड़ा हुआ था और जाग भी मौजूद होगी हमारे पास। इट माइट बी द ब्लड स्टेन एंड कमिंग फ्रॉम द माउथ एंड नॉस्ट्रिल। ये इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज देयर इज एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन बढ़ रही है due to the organophosphorus poisoning। Now, after that, there will be the important is kerosene-like or garlic-like smell। सही है। These smells are very important in the autopsy। तो उसके बॉडी से भी आ रही होगी ये स्मेल, शायद उसके क्लॉथ से भी आ रही हो, और इवेंचुअली जब हम उसके इंटरनल एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं, सो वी गो फॉर दैट के might be present inside the stomach and the stomach contents will be the blood stain। of course, there will be congestion always present in the stomach. There will be pulmonary edema, congestion in the lung, and of course, our favorite garlic smell will be present। So, a garlic smell is very specific for the organophosphorus poisoning। MCQs में आ सकता है। सही है। So, congestion of brain is of course present because central nervous system को भी affect करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है और ये बहुत important है। I highlighted that and I put that a bit bigger for making you guys remember, that is resist the putrefaction। It's very important। ये हमारे पास putrefaction को resist करता है और जब भी हम exhumation करते हैं तो हमारे पास dead bodies में detect हो सकता है। Putrefaction क्या चीज़ है? We'll be discussing that in thanatology।
मौत के बाद एक ख़ास गलने सड़ने का अमल आता है जिसमें बॉडी में जितने ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एज एन फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस से जो बंदा मरा हो तो उसमें गलने सड़ने का अमल लेट होगा। इसकी वजह से हमारे पास उसके जिस्म में जितने एविडेंसेस हैं, चाहे वो इंजरी के हो, चाहे वो किसी क्रुएलिटी के हो, किसी ब्रूजेस हो या कोई फ्रैक्चर के निशानात हो, तो उस तमाम हमारे पास इजीली डिटेक्टेबल हो सकते हैं। सही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमने विसरा के एग्जामिनेशन के लिए कोई भी ऑर्गन लेना है, तो वी विल पुट दैट इन सैचुरेटेड सेलाइन सोल्यूशन। जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन में इसको डालना है। सही है। और फिर मेडिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रहा है, घरों में भी यूज़ हो रहा है, जानवरों को, माल मवेशियों नहीं, जानवरों को और ये वर्मेसाइड्स को और रोडेंटिसाइड्स को मारने के लिए सो इजीली अवेलेबल है। कॉमनली घरों में या आस पड़ोस पे हो सकता है। तो ये पॉइंट हमारे पास है कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है और सुसाइडल भी हो सकता है। सुसाइडल इसीलिए है कि इजी अवेलेबिलिटी है, जल्दी मौत आ जाती है, जल्दी इफेक्ट कर लेता है। सही है। और इट माइट बी द होमोसाइडल बट इट मस्ट बी मिक्स्ड विद समथिंग। सही है। ऐसा ना हो आप किसी को पिला रहे हो और वो कहे कि यार ये गार्लिक की स्मेल कहाँ से आ रही है, ये तो कोई जामे शीरीन नहीं है। सो एट दैट पॉइंट दे विल बी यूज फॉर द होमोसाइड बट मस्ट बी मास्क्ड विद अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल के ट्रेसेस भी आ सकते हैं। वो लोग जो कि इसके पैकिंग में, स्प्रेइंग में, एग्रीकल्चर जो कि हमारे पास इंडस्ट्री है उस जगह पे काम करते हैं, सच पीपल आर एट द हाई रिस्क फॉर एक्सपोजर ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस। तो इनमें एक्सीडेंटल पॉइजन हो सकती है। इसके अलावा घरों में अवेलेबल हो तो बच्चे भी इसको गलती से पी जाते हैं। सही है। आफ्टर दैट the next topic is the datura. So, Dr. Saab, datura is a very common plant that's almost present in everywhere. मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी इसको नहीं देखा हो. So, this is the structure of the datura. Highly important is this is a deliriant poison. Dr. Saab, deliriant poison. हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी पॉइजन्स हैं जो कि न्यूरोटिक्स है उसे हमने डिवाइड किया था, वो जो कि सेरेब्रल के ऊपर काम करेंगे, वो जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करेंगे और वो जो कि हमारे पास पेरिफेरी में काम करेंगे। और जो कि सेरेब्रल थे उसे फर्दर वी डिवाइड दैट इनटू द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। वन वाज इनेब्रिएंट like alcohol. Second was somniferous like opium. And the third one was deliriant. That is our topic for today. Deliriants were those poisons which cause the delirium effect. Delirium is an effect in which a person has been cut off from the realities. आसमान में खलाए मखलूक नज़र आते हैं, चाँद सितारे जो है ना उसको अजीब अजीब इशारे करते हैं, वहियाँ आती हैं उसको। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज डिल्यूशनल थिंग्स। सो सच टाइप ऑफ पॉइजंस प्रोड्यूस द डिलेरिएंट इफेक्ट। सही है। कहाँ पे वेस्टलैंड्स में अक्सर हो जाते हैं और तमाम का तमाम पौधा जो है खतरनाक है। लेकिन हाईली पॉइजन जो है ऑफ कोर्स फ्लावर है और सीड्स है। फ्लावर्स का काफ़ी खूबसूरत किस्म का होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो बच्चे काफ़ी इसको अट्रैक्टिव होते हैं इसकी तरफ, तो गलती से जाके इसको खा भी सकते हैं। दैट कैन लीड टू द एक्सीडेंटल एट द मोमेंट। सही है। सो डॉक्टर साहब इसके दो वेरिएंट्स हैं, दो इसके काइंड्स है। इसमें हमारे पास एक दतूरा एल्बा है। एल्बा इज वर्ड फॉर द वाइट, सो दैट विल बी वाइट इन द कलर, एंड द अदर वन इज द दतूरा नाइगर, दैट इज black in the color. So this is the white and that's the black. However, they are very beautiful in looking or extremely poisonous. बेल शेप फ्लावर होता है, शार्प स्पाइनी इसकी फ्रूट्स होते हैं और इसी वजह से इसको थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। बिल्कुल एप्पल की तरह होता है, छोटे एप्पल की तरह, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ थॉर्न्स। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं। व्हाट वी कॉल दैट थॉर्न्स, कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे कांटे होते हैं। Fruits contain yellowish brown seeds. We'll be seeing that in detail because that come highly similar to the chili seeds. जो हमारे पास चिली है उसके सीड्स की तरह होते हैं। So one must differentiate between the
brown seeds of the datura and chili seeds of the capsicum annum. सही है. सो एग्जाम वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑस्पी वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के सीड्स में. विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल इन आवर लेक्चर. इसके अलावा हर एक जो फ्रूट होता है उसमें 400 से 500 तक सीड्स होते हैं डॉक्टर साहब. सो दिस इज एक एप्पल की तरह और इट हैज़ अ लॉट ऑफ थॉर्न्स. काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं इसके ऊपर. अट्रैक्टिव इसका फ्लावर होता है और लुक एट दिस ripen seed. It has a lot of seeds. Ripen fruit जब ये ओपन अप होता है तो it has a lot of seeds. 400 से 500 तक इसके अंदर सीड्स होते हैं तो इजीली स्प्रेड हो सकते हैं और ये सीड्स काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम असली में ये आ जाता है. What is this? So one must know about this flower. It's quite beautiful. Bell shape इसका जो है ना स्ट्रक्चर होता है. So that is datura flower. Again, that's the fruit of the datura flower, spiky और thorn apple. तो ये इजीली आप इसको देख सकते हैं गांव में इधर उधर. पता नहीं पेशावर में है कि नहीं है लेकिन हमारे पहाड़ में तो काफ़ी ज़्यादा है. Again, this is the mm, datura niger, the black one. I told you about that. The datura seeds and chili seeds have quite similarity, so one must know how they are different from one another. That is, जो हमारे पास दातुरा सीड्स होते हैं वो ब्राउन इन कलर होते हैं जबकि चिली सीड्स होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं. चिली सीड्स आर पंजेंट मतलब आपको बाकायदा फील हो रही होती है जब आपके हाथ में आते हैं तो आप इसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं. यू फील लाइक दिस सम पंजेंट थिंग, समथिंग इज चोकिंग इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो ऑफ कोर्स जब आप चिलीज को या स्पाइसी जो हमारे पास कैप्सिकम एनम्स होते हैं उनको स्मेल करने की कोशिश करेंगे. सो वी फील दैट हाउएवर दिस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द दातुरा सीड. सही है. और अगेन आई मेक दैट स्मॉल. सो व्हाट दैट सजेस्ट दैट विल बी small in size. However, the datura seeds are quite larger in size. तो बस ये छोटे पॉइंट्स है और इसके 8 नंबर होते हैं उसवी में. तो ये वाली स्लाइड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट. बच्चों अगेन दिस इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ seeds, quite similar in structure, but as being a good physician one should must know what are the difference between them. Uh, this is the datura seeds, they're brown in color. This is the chili seeds, yellow in color. Again, they are pungent. They are not going to be pungent, and they are larger in size, and however they are smaller in size. अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है जो कि इस दातूरा को इतना खतरनाक बनाती है. सो यू कॉल दैट द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द दातूरा इज इंटरेस्टिंग थिंग एट्रोपिन. यही एट्रोपिन हमारे पास किस चीज़ में था ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पॉइजनिंग में यूज हो रहा था. सही है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हमारे पास एंटीडोट यूज हो रहा था और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसी चीज को एज एन एंटीडोट इसके अंदर रखा है. सो द क्वेश्चन इज कि अगर एक बंदा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की वजह से उसे पॉइजनिंग हुई है तो उससे बस दातूरा खिला दे तो ठीक हो जाएगा. तो वन कैन डू सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. सही है डॉक्टर साहब. आई डोंट नो अबाउट दिस लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एट्रोपिन हमारे पास मौजूद होता है एज एन एक्टिव प्रिंसिपल. इसके अलावा हायोसिन एंड स्कोपालामीन ये भी हमारे पास ट्रेसेस में मौजूद होते हैं. तो बहुत आसान है डॉक्टर साहब. भूलेगा भी नहीं आपको. दातूरा का जो एक्टिव प्रिंसिपल है कोई भी नहीं याद आता तो एट्रोपिन इज मस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट बी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बिल्कुल उसके ऑपोजिट. बिल्कुल स्टिमुलेट द हायर सेंटर, इनहिबिट द सेक्रीशंस. मतलब किस तरह हमारे पास जो ऑर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग में क्या थी एक्सेसिव सैलिवेशन आंख से भी मुंह से भी. सही है. और जाग भी आ रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा. बिल्कुल जो हमारे पास जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स है दे वुड बी इनहिबिटेड. क्यूटेनियस टिश्यू वुड बी डायलेटेड. प्यूपल वुड बी डायलेटेड. हमारे पास क्या था ऑर्गन फास्फोरस में पिन पॉइंट प्यूपल पी 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 3 P. सही है. पिन पॉइंट प्यूपल. सो दैट वाज in the organ phosphorus poisoning. However, there will be the dilated. सही है. बिल्कुल उसके ऑपोजिट जबकि ऑर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग में पिन पॉइंट प्यूपल था. इसके अलावा जो हार्ट रेगुलेट सेंटर्स है उसको भी स्टिमुलेट करेगा.
initially that stimulations but eventually that leads to the depression. Of course इसने थकना है और इस थकने के बाद इसने paralysis की तरफ जाना है, सही है, of the vital centers in the medulla. So what will be the mechanism of action? First it stimulate the higher centers, and then after the stimulations it depress the higher centers, and due to the depression of the higher centers the paralysis goes on specifically to the medulla. और डॉक्टर साहब सोचिए अगर मेडुला को पैरालिसिस हो गया तो डेथ तो कंफर्म है, सही है. देयर विल बी द 9 डीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैडम का फेवरेट क्वेश्चन है. व्हाट आर द 9 डीज ऑफ द दातुरा? सो इसको याद रखना है. द 9 डीज आर फर्स्ट ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, dysphagia, dilated cutaneous blood vessels, dilation of pupil, dry hot skin, drunken gait, delirium and drowsiness. सही डॉक्टर साहब. सो इसके लिए एक निमोनिक है दैट इज ड्राई एज बोन. इतना ज्यादा ड्राई होती है उसकी स्किन जैसे कि खुश्क इतनी होती है जैसे कि हड्डी. रेड एज अ बीट, बीट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट, सही है, बिल्कुल सुर्ख कलर का होता है. नो 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 सॉरी सॉरी, बीट इज अ चुकंदर, चुकंदर बिल्कुल सुर्ख कलर का होता है, सही है. दिस इज अ फ्रूट, इट्स नॉट द बीटल, इट्स अ फ्रूट. जो चुकंदर होता है, बीट होता है, ये बिल्कुल रेड कलर का होता है. ब्लाइंड एज अ बैट, बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो बैट है उसके आंखें नहीं होती. वो ये क्यों ब्लाइंड हुआ है? इसलिए ब्लाइंड हुआ है बिकॉज द प्यूपल्स आर एक्सट्रीमली डायलेटेड, सही है. अभी इसको फोटोफोबिया हो रही है. सो हॉट एज अ हेयर, हॉट क्यों हो रहा है? बिकॉज इज एक्सेसिव, जो हमारे पास प्रेस्पिरेशन फिनोमेना है, जो पसीने आने का अमल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसकी बॉडी किसी भी किस्म के मैकेनिज्म को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, सही है. एंड मैड एज अ वेट हैंड, दिस सॉर्ट ऑफ फनी, ये जो है इतना गुस्सा होगा कि जैसे कि भीगी हुई मुर्गी, सही है डॉक्टर साहब. सो इसी नमूने के थ्रू आप ये याद कर सकते हो. अगर कोई केस सिनेरियो है जिसमें इस तरह डिस्कस किया है, ड्राइनेस, डीज नहीं डिस्कस की, तो यू गाइस मस्ट नो अबाउट दिस. और इसके अलावा 9 डीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द वाइवा. मैम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सही है. तो डॉक्टर साहब आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग ड्राइनेस, डी के अलावा अनस्टेडी गेट्स होती है, इसमें रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन होती है, डिलीरियम एंड ड्राउजीनेस होती है. ऑफ कोर्स डिलीरियस होगा बिकॉज दिस इज अ पॉइजन दैट लीड टू द डिलीरियम, progress to the coma, and eventually that leads to the respiratory paralysis. Signs and symptoms might be mistaken from the drunkenness, heat stroke, drunkenness like ऐसे लग रहा होगा जैसे उसने सही रच के शराब पी है, और वो ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं बिकॉज ही इज नॉट able to talk properly, he is very hot, he is very hyper, uh, he is not having any perspiration, और सही से बात भी नहीं कर रहा है, स्टडी गेट भी है. तो कोई और उसको देखेगा तो शायद उसकी मदद ना करे और उसको छोड़ दे कि यार ये तो कोई शराबी है. इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर बी लाइक डिले दातुरा पॉइजनिंग. इसके अलावा हीट स्ट्रोक भी हो सकता है. लेकिन हीट स्ट्रोक में हमारे पास जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इन दी हमारे पास जो मेडुला है, क्योंकि हमारे पास तमाम हीट मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, थैलेमस है, वो हीट मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है. वो थैलेमस में डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल रेड हॉट होती है, सही है. सो वन शुड मिस्टेक दैट फॉर द हीट स्ट्रोक, और आप उसके ऊपर पानी फेंक रहे हो और उसे पानी पिला रहे हो, इवेंचुअली इट्स नॉट द हीट स्ट्रोक, दिस इज द दातुरा, सही है. सो साइन एंड सिम्पटम माइट बी मिस्टेकन फ्रॉम द ड्रंकनेस एंड दैट वाज द हीट स्ट्रोक. Again, we are going for the fatal dose. Fatal dose are 100 to 125 सीड्स. हमने कहा है कि एक फ्रूट में हमारे पास 400 सीड्स होते हैं, लेकिन एक फ्रूट तकरीबन 4 से 5 लोगों को सफिशिएंट है उनमें ये पॉइजनस इफेक्ट्स लाने के लिए. इट रिक्वायर्ड 24 आवर, पूरा एक दिन लगता है. इसके बाद बंदे मरने के चांसेस आ जाते हैं, सही है. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि दातूरा से मौत बहुत कम होती है, सही है. इट्स स्पेसिफिकली यूज टू स्टूपिफाई, स्टूपिफाई मतलब किसी को स्टूपिड बनाना, या कोई ऐसे ड्रग्स खा लेना जिससे बंदा स्टूपिड बिहेवियर करे. जैसे कि एक
भोला कहें या कोई स्टूपिड कहें कि मतलब उसे उस टाइम समझ नहीं आ रही होती, वो अपनी कमीज भी निकालेगा, वो अपनी शलवार भी निकालेगा, so acting like a stupid person, सही है, at that moment we call that stupefying agents। तो अगर एक ऐसे बंदे को धतूरा दिया जाए जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ some precious things or might be some gold or money, so at that case जो मेडिकली के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि स्टूपेफाइंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती है और उसको खिला देते हैं जैसे मिठाई में या पानी में या किसी शरबत में, और उसके बाद वो जो बंदा है वो सही एक्शंस नहीं करता, उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है, लीडिंग टू दी हार्मफुल इफेक्ट, सही है। तो इससे मौत नहीं आती है, इससे जो क्राइम है उसमें जो बंदा है उसको कमिट करने में उसे हेल्प मिलती है, जो टारगेटेड पर्सन है उसको स्टूपिफाई करने में, स्टूपिड करने में हेल्पफुल होती है, सही है। So treatment of the datura is again our favorite stomach wash or the gastric lavage, and here again like the organophosphorus poisoning, that will be the potassium permanganate or 5% of the tannic acid. Do remember tannic acid is a part of the universal antidote, UA, universal antidote। इसके अलावा फाइसोस्टिग्मीन भी हम दे सकते हैं, न्यूस्टिग्मीन भी हम दे सकते हैं, ये दोनों एट्रोपिन के दुश्मन है, सही है। ये आप फार्मा में भी पढ़ेंगे, सही है डॉक्टर साहब। सो 2.5 मिलीग्राम टू आईवी एवरी 3 आवर्स, ये हमारे पास कौन से एंटीडोट की तरह काम करेंगे, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। ये क्या होते थे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स, जो कि एंटागोनिज्म को फॉलो करते थे। व्हाट वाज दिस, इफ वन ऑफ देम गॉट एन एक्सेसिव अमाउंट दैट विल लीड टू द टॉक्सिक इफेक्ट इन द अदर वन। इसके अलावा प्रोजेटिव्स भी दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब हूँ, नींद नहीं आएगी, इस कंडीशंस में नींद नहीं आएगी बिकॉज देयर इज वेरी एक्सेसिव स्टिमुलेशन, तो आप इस चीज़ों को हाईली फोकस रखेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, सही है। इसके अलावा चूँकि ज़बान इसमें बिल्कुल ड्राई होती है, अगर उसमें मॉइस्चरिंग आना स्टार्ट हो जाए और प्यूपल का साइज़ जो है वो भी थोड़ा-सा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, अपनी नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। एज़ एन फिजिशियन यू मस्ट बी feel relaxed that he will get improve, otherwise he is going to the decline। पोस्टमार्टम अपीयरेंस हमारे पास क्या आएंगे, साइंस ऑफ द एस्फेक्सिया होंगी, सही है, द तूरा सीड्स माइट बी प्रेजेंट साइड द स्टमक। इसके अलावा जो है हमारे पास कंजेशन ऑफ द जीआई ट्रैक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सेम लाइक द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इट रेजिस्ट प्यूरिफेक्शंस, अगर प्यूरिफेक्शन को रेजिस्ट करता है तो इससे हमारे पास एविडेंसेस सेफ रहती हैं फोरेंसिक के एस्पेक्ट्स में। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स आर दी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टॉप, अगर कोई स्टूडेंट दातुरा के पॉइजनिंग में सबसे टॉप पे ये लिखता है होमोसाइडल, सुसाइडल या एक्सीडेंटल, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको मौत के लिए बहुत कम यूज़ किया जाता है, इससे क्राइम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, सही। सो इट्स यूज्ड एज स्टूपेफाइंग पॉइजन, सही है, might be given prior to the robbery, kidnapping, rape। It's also used as a road poison। इसे रोड पॉइजन इसलिए कहते हैं कि रोड पे चलते चलते किसी को कुछ खिला दिया पिला दिया तो ये इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी भी है, आई विल बी टेलिंग दैट लेटर ऑन। कॉमनली गिविंग ड्यूरिंग द जर्नी इन फूड और ड्रिंक इन ट्रैवलर टू ड्रॉप देम, सही है। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा ज़हीन हो गए हैं, लेकिन प्रीवियसली दैट सच टाइप ऑफ एक्शंस हैज बीन परफॉर्म। इसके अलावा ये गुनूदगी लाती है जब बंदे के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, सही है। टेम्ड एनिमल, नाम बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये इसको डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है, द पर्सन बिहेव एज एन टेम्ड एनिमल, जो हमारे पास वो बंदा होता है वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि एक पालतू जानवर है। जिस बंदे को इससे स्टूपिफाई बन गया, सो इज एक्टिंग लाइक अ टेम एनिमल। जब आप उसको कहते हो उठ जाओ तो उठ जाता है, जब आप उसको कहते हो बैठ जाओ तो बैठ जाता है, किसी किस्म की चीज़ को भी रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। अगर आप उसके जेब से कोई चीज़ भी निकाल रहे होते हो तो खुशी खुशी दे रहा होता है, कोई वैल्यूएबल चीज़ उसे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, बिकॉज ही हैज़ बीन स्टूपिफाइड। इसके अलावा ही मे कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रिजनर, मतलब गिवन बाय द प्रिजनर और मे बी इवन ऑफर हिज बिलोंगिंग, सही है।
तो ये भी हो सकता है कि जो बंदा है जो कि उसको पॉइजन कर रहा है, द पॉइजनर, वो उसे फिर एडवाइस करे कि मैं तुमसे ये चीज़ें ले रहा हूँ, तुम बस आराम से दूसरी तरफ चले जाओ और आराम से चलते रहो और पीछे मत देखो। एंड ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपनिंग, सो ही विल बी कीप ऑन गोइंग लाइक अ टेम्ड एनिमल हियर। वो उसे एडवाइस भी कर सकता है, सही है। अंडर द इफेक्ट ऑफ द दातूरा द पर्सन इज ड्राउजी, वो बिल्कुल नींद नींद में होता है। जब उसे नींद से उसकी आंख खुलती है तो बेचारे को क्या रियलाइज होता है कि द पॉकेट्स इज पैक्ड, उसकी जेब मारी गई है, ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट टू हिम लाइक वैल्यूबल्स आर नाउ नॉट प्रेजेंट देयर। एंड ये उसे याद आ जाता है कि ऐसे एक बंदा था जो कि मुझसे ऐसे बातें कर रहा था, मुझसे बड़ा अच्छा अच्छा बन रहा था, मुझे उसने मिठाई दी थी, मुझे उसने शरबत दिया था। उसे वो कहानी रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस को कहता है कि मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और समथिंग लाइक दिस। लेकिन उसका जो गेट है वो इतना ड्रंकन होता है और उसकी जो स्पीच है वो इतनी डिफ़िकल्ट टू टॉक होती है कि पुलिस समझता है कि इसने जो है ही इज़ हाईली ड्रंकन एंड ही इज़ नॉट इन हिज नॉर्मल सेन, तो शायद उसको जो है वो जेल में भी डाल दें। सो नॉर्मली इन आवर स्टेट इन पाकिस्तान देयर इज़ नो मोर केसेस ऑफ द ड्रंकननेस, लेकिन बाहर ममालिक में जो है पीपल यूज़ द अल्कोहल इन अ वेरी हाई क्वांटिटी। सो एट दैट कंडीशन व्हेन सच पर्सन गो टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, सो ऐसे कंडीशन पे पुलिस उसको काफ़ी मिसजज कर लेता है और be very difficulty for him. So this is very important medical legal importance, that is tamed animal. How can Datura make a person like a tamed animal? Talks of this another topic, that is कार्फोलोगिया. This is interesting one. ऐसे लग रहा होता है दातुरा के पेशेंट को कि उसकी जो फिंगर टिप्स है डॉक्टर साहब, जैसे इस बंदे की फिंगर टिप्स है या उसके जो बाजू है, उससे वो कुछ इमेजिनरी थ्रेड्स निकाल रहा है। दिस इज प्योरली साइकोलॉजिकल, सही है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो चुकी होती है इसकी वजह से ऐसे फील रहा होता है कि कोई कुछ थ्रेड सी निकल रही है मेरे फिंगर से या मेरे नेल बेड से, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कुछ इमेजिनरी लाइटनिंग सी, इमेजिनरी पावरफुल स्पार्क सी, थ्रेड सी मेरे फिंगर से, नेल टिप से निकल रही है। So that is highly due to the complication of the datura poisoning. We call that carphologia. सही है? So this is carphologia. Again, we discuss such type of thing in the cocaine as well. In the cocaine poisoning, we discuss there's a thing we call that uh, fornication present inside the tactile movement present inside the skin, bug-like movement. हमने इसको क्या कहा था? What is that? That was Megan sign. Megan sign. जो कोकेन पॉइज़निंग की वज़ह से जो बंदा पेशेंट आया होता है, उसमें हमारे पास वो कंप्लेन कर रहा होता है या वो अपने हाथों को ऐसे मल रहा होता है जैसे सम बग्स हो, दे आर क्रीपिंग अंडर द स्किन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज़। मेगन साइन वाज़ फॉर द कोकेन एंड कार्फोलोगिया वाज़ फॉर द इज़ फॉर द दातूरा पॉइज़निंग। इसके अलावा बच्चों में एक्सीडेंटल भी डिस्कस दैट कि बच्चों में एक्सीडेंटल पॉइज़निंग हो सकती है। फ्लावर इसका काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, खूबसूरत किस्म का होता है। Okay, so that's enough. Is there any question? I'm also submitting the slides separately as well, so you guys can study other than this video. Thank you so much.